So yesterday's class we had done fragmentation, and I said fragmentation is shown by those organs where the body is not differentiated into tissues, organs or systems. All the cells of the body are exactly similar. So you divide them into any number of pieces. Each piece with minimum one cell will start acting as a new individual. ये एक राधे श्याम जी है, राधे श्याम जी बहुत अच्छे नाम लगते हैं मेरे को, राधे श्याम। राधे श्याम जी के किसी रोड के किनारे पे 4 शॉप थी, 4 शॉप नंबर 1, 2, 3 and 4। उनके 2 बच्चे थे, राधे श्याम जी के 2 बच्चे थे। एक का नाम था राधे और एक का नाम था श्याम। राधे श्याम जी ने मरने से पहले बोला कि देखो मैं तो मर रहा हूँ, हमारी 4 दुकानें हैं, प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड करना है, मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो ही गेव देम एन अपॉर्चुनिटी कि भाई अपने आप से छांट लो, कोई सी भी 2 दुकान राधे ले ले, कोई भी 2 दुकान श्याम ले ले, ठीक है। तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक ले ले, ये एक ले ले, 1 and 2 एक ले ले, 3 and 4 एक ले ले, या फिर 1 and क्या कहते हैं, कोई भी ऑप्शन बना ले। एनीवे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा बगल के ले ले, ताकि वो उनको चाहे तो जोड़ के एक बना लेना। बट नो वन कैन हैव दिस ऑप्शन कि भाई 1 and half मैं लूंगा, 2 and half तू ले ले। एक दुकान को बीच से कैसे डिवाइड करें, ठीक है। नाउ यू टेक एनी शॉप, द शॉप्स आर सेम, दे आर जस्ट ब्लैंक डब्बास ऑफ 10 by 10 feet, and whatever other further arrangement you have to make, that you have to make। उसके बदले में suppose राधे श्याम जी is having a house also, a house 20 by 50 का, 20 by 50 का, उसको 2 में डिवाइड करेंगे, कितने कितने के होंगे बताओ। 20 by 50 का एक प्लॉट को if we divide 2 equal halves, what will be the size? Anybody can unmute yourself and tell me. A house of 20 feet by 50 feet, if divided into 2 equal halves, what should be the size? सब मैथ्स में बोले क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? उपमन्यु सिंह बोलो। 10 feet by 25 feet। 10 feet by 25 feet, is it? This is 25, 20 by 50। तो अब इसको ऐसे डिवाइड करके फिर ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 feet by 25 feet लेंगे। अब ये 10 and 20 हो जाएंगे, 20 by 25 50 हो जाएंगे। 4 पीस हो जाएंगे, 2 पीस कौन रखेगा फिर? Either it will be 25 by 20 or it will be 10 by 50। तो अभी मान लें 10 by 50 करते हैं। तो suppose the shop, the house is divided like this। ये एक बेडरूम है, ये एक बेडरूम है, ये एक किचन है, ये एक टॉयलेट है, ये डाइनिंग है और ये ड्राइंग है, और यहाँ से जीना जाता है ऊपर। So it is being divided and one of them चिट्ठी निकाल लेंगे, पता चला राधे जी को ये मिला और श्याम जी को ये मिला। श्याम जी किचन कहाँ बनाएंगे, खाना कहाँ बनाएंगे, और राधे जी के घर वाले वॉशरूम कहाँ जाएंगे। राधे जी के कोई गिफ्ट मतलब मेहमान आए तो उनको ड्राइंग रूम में बैठाएंगे, श्याम जी कहाँ बैठाएंगे, सीढ़ियों के नीचे। So in such a case what will have to be done, that he will have to construct one drawing room and kitchen, he will have to construct one bathing room at least। तो यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। Some you got, some you have to construct। There what you have, that is enough, self-sufficient। you आपको कुछ भी नहीं बनाना, you can straight away start। The fragmentation in this kind of system where the body is divided into 2, 3, 4 any number, but minimum one cell is there that will start acting as new tissue। तो ये वाला सेल हो जाएगा, ये टूट गया, ये डैमेज हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। This cell, this cell, and this cell, and this cell, 4 bodies are formed। And then later on whatever they had to do,
they will make, as they are going to make their counters and they are to make their shelves and all. But if the body is differentiated, as in case of planaria or as in case of hydra, तो उसको तो फिर बची हुई चीजें खुद बनानी पड़ेगी ना. If it is broken into this piece, तो lower piece is there, the upper is not there. Upper है तो उसके बाद lower नहीं है, तो upper one has to make the lower one and lower one has to make the upper one parts. If it is a planaria, the diagram is given in your book. If the planaria which has got sucker here, which has got intestinal opening there, if you divide into three parts, the first part will have to make these two, this will have to make these two, and this will have to make the remaining two, जिनको बाद में कुछ जनरेट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, टू मेक अगेन, दैट इज कॉल्ड जनरेट. तो उसको हम कहेंगे रीजनरेशन. एंड वेयर इट इज द डिवीजन इटसेल्फ इज इनफ फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन is shown by undifferentiated body. Regeneration is shown by differentiated body. Fragmentation, you can get any number of individuals with each piece having one living cell at least. Regeneration, your body can be divided into 2 or 3 pieces only, because there a sufficient number of cells is required to regenerate, reorientate. Here, no sooner the division is taking place, the individual is start to behave as a new individual. यहाँ पे उसको बचे हुए पार्ट बनाने पड़ेंगे. So it is a fast and it is a slow process. 4 डिफरेंस आज मैंने बोल दिए हैं. वीडियोस को वापस रिप्ले करना घर पे एंड नोट्स लिख लेना. I have said 4 points. The difference between fragmentation and difference between fragmentation and regeneration. Both these processes are shown by multicellular organisms, and it is the simplest method where the body is divided or broken into 2, 3, 4, 5 number of pieces. Each piece with minimum 1 living cell will act as a new individual. और regeneration में क्या हो रहा है? When the body is divided into 2 or 3 pieces, each piece with a sufficient number of cells will reorient itself into a new body. Regeneration 2 या 3 बस. Fragmentation you can have even more number of cells. ठीक है? So that is the difference. Okay? So we are done the fragmentation and regeneration. Now we shall start the next one, that is vegetative propagation. हमने fission पढ़ लिया, binary fission and multiple fission. We are done budding, we are done spore formation, we are done what you call fragmentation and regeneration. So many different type of asexual reproduction हमने कर लिए. And I suppose if you are studying, you may have some doubt, क्योंकि those children who are taken test, handful of children, I think 17 or 18 has taken test. बाकी तो पढ़ ही नहीं रहे, obviously simple सी बात है. Who will take test? The one who is studying. That much of courage should be there, no? अरे हम वो दशहरा मेले में जाते हैं और वहाँ पे एक आदमी मूँछों पे ताव लगा खड़ा रहता है और बोलता है कि आ जाओ, जिसको पहलवान जो मुझसे कुश्ती लड़ेगा उसको 20,000 रुपये का इनाम मिलेगा. हर कोई थोड़ी चल जाता है. मन में इतना तो पावर होना चाहिए कि मैं उसको हरा पाऊँगा. ठीक है? तो आप में इतना गट्स ही नहीं है कि आप टेस्ट लेके कुछ कर पाएंगे. द टेस्ट इज स्टिल अवेलेबल ऑन दैट इज चैनल ऑफ सैटरडे का टेस्ट है, आप जा कर के देख सकते हैं. और अगर आप कर पाते हैं तो करिए. इवन दोज हु हैव डन वंस कैन रीअटेम्प्ट. नहीं होगा, रीअटेम्प्ट नहीं होगा. विद द डिफरेंट मोबाइल यू कैन रीअटेम्प्ट और लैपटॉप से कोशिश करिए. आपका फायदा है, मुझे तो उनके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है. बट आई थिंक दैट द चिल्ड्रन शुड गेट. टुमारो योर पेरेंट्स शुड नॉट से कि सर ने क्या पढ़ा है, हमें तो पता ही नहीं है. बच्चे का कोई उसको डाउट पूछना था. वी हैव गिवन यू ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. वी आर गिविंग यू जूम क्लासेस वेयर फेस टू फेस यू कैन सी, interaction can be there. Then we are putting videos
which you can watch any number of time, any time. 5 मिनट का आज देख, अभी देख करके 25 मिनट का बाद में देख सकते हैं. 10 मिनट्स का यू कैन वॉच, 15 मिनट का वॉच. योर पेरेंट्स आर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो वीडियोज़ आते हैं. देन वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउट क्लासेस. हु एल्स इज गिविंग? हमारे शक्ल हमारे सिस्टम को देख देख के बहुत सारे अदर स्कूल से फॉलोड दैट. ठीक है, तो वी आर गिवन यू ऑल द अपॉर्चुनिटीज. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इफ यू आर नॉट मेकिंग यूज़, तो आप क्या है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप लोग तो जाते ही रहते होंगे, अब तो खैर मत जाइए, अभी तो खैर टाइम अच्छा नहीं है. जिनके रेस्टोरेंट होंगे वो मेरे से बोल रहे होंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा. एनीवे, जिनके रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो पड़ी रहती है. सम थिंग्स आर ऑलरेडी लाइक देयर. वो क्या है, कुछ सॉस वॉस वगैरह पड़े रहते हैं वहाँ पे. फॉर दैट नो वन इज चार्जिंग यू, है ना. तो उनका फ़ायदा तो आप उठा सकते हैं. कुछ भी मिला आप उसके अंदर डाल सकते हैं. सॉल्ट इज़ देयर, पेपर इज़ देयर, that vinegar is there, that chili this thing is there, आप वो सोया सॉस इज देयर. उनको तो आप किसी में भी डाल के आप टेस्ट एनहांस कर सकते हैं. उनके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा. बट फैसिलिटीज आर गिवन एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ इट, व्हाट इज द सेंस? ठीक है, तो आपको इसका उपयोग करना है. ये कौन है? यशिता. Yoshita Jain, put your camera on. And Abhishek, put your camera on. Himanshi Gaur, you can put your camera on. I am giving you 1 minute's time. ठीक है, I must know that you belong to the class. तो और ये अनवी गोस्वामी. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग एंड fragmentation, regeneration. 6 of them we already completed. The 7th one is vegetative propagation. Vegetative propagation. Now what is meant by vegetative and what is meant by propagation? Vegetative means non-reproductive. That is the one which is not taking part in reproduction, जिसका reproduction से कोई लेना देना नहीं है. अच्छी लग रही हो यशस्विनी, हटाओ इस फोटो को, अपनी शक्ल लगाओ, नहीं तो मैं आपको बाहर भेज देते हैं. आई एम नॉट हियर टू सी ऑल दिस थिंग्स. क्या करते हैं बच्चे? आधे टाइम इनको बस मॉनिटर करते रहो. ओके, चिल्ड्रन इफ यू फाइंड anyone who is not belonging to our class, मेरे को बता देना, बाहर भेज देंगे. नॉन रिप्रोडक्टिव समझ लेना, वो है जिसका रिप्रोडक्शन में कोई लेना देना नहीं है. Vegetative propagation is done by those organisms, those part of the body which are not responsible for reproduction. And देखिए, इसको मैंने भी reproduction नहीं लिखा है. It is propagation. What is propagation? Anybody? Anybody want to tell me what is propagation? कौन है ये? Anybody want to tell me what is propagation? Can raise the hand. Sound propagation पढ़ा था ना क्लास 9th में. Propagation of sound. What is meant by propagation of sound? गजब हो यार. ये वीडियो देखना, आपको मालूम पड़ेगा. I can see the most intelligent children and most active children and the children with multi potentials and शालीन बच्चे और सुशील बच्चे and many other types. But what is the sense? आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं. Propagation मतलब क्या है? To move ahead, go ahead. आगे जाना है, रुकना नहीं है. देखिए यहाँ पे क्या है, आलू का एक पेड़ उगा है. आलू कैसे उगाते हैं आपको पता है ना? सपोज दिस इज अ पीस ऑफ द पोटैटो एंड वी ग्रू इट एंड वहाँ से इसके फल पौधा बन के आ गया. एंड देन व्हाट विल हैपन? वी विल फाइंड दैट मोर आलूज आर देयर.
आलूज एंड आलूज अभी क्या होंगे? when the unfavorable season comes, the stem of the alus dies. अब आप थोड़ी जाएंगे वहां खेती करने जंगल में, तो क्या आलू की इच्छा नहीं है कि मैं अगले जन्म में मेरे नए पौधे आए? तो है ना। तो व्हाट विल हैपन? ये आलू हैज गॉट सम आईज एंड फ्रॉम दीज आईज द न्यू प्लांट्स विल कम आउट बिकॉज इट वाज नॉट यू। तो वहां पे कौन काट के डालता भाई इनको? तो उन्होंने अपना खुद का तरीका डेवलप कर लिया प्रोपेगेट होने का। नाउ एक्चुअल प्लांट यहीं तक था, नाउ द प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। नाउ दे विल अगेन मेक पोटैटोज, ये बन गए सब पोटैटोज, इधर से थोड़े और आगे निकल गए, इधर से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर साइड में, नीचे साइड में। एंड इफ यू गो आफ्टर 5-6 years that whole land will have potato plants. They are propagated from a place to other places. Their own through the vegetative organ, that is the potato, that is the underground food storing stem. Stem का काम क्या reproduction करना होता है? नहीं होता। Stem is not meant for reproduction. But stem propagated its generation from one generation to next. उसको एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लेके गए। That is why we call it is a vegetative propagation. Whenever unfavorable condition will come, potato is a seasonal plant. It will grow for a particular season when the favorable conditions are there. And when the unfavorable conditions comes, ये सब मर जाएंगे। Same is true with the others. ऐसे ही बहुत सारे दूसरे मेथड भी हैं where a plant propagates or moves from one generation to another through the way of what you call using asexual organ, vegetative organ. So that is known as vegetative propagation. मैंने कहीं vegetative reproduction नहीं लिखा है। This process of plant is artificially exploited by human being to generate a new plant. तो हम क्या करेंगे? हम बाजार से एक पोटैटो लाएंगे, आते रहते पोटैटो घर में, and during this season if you see your potatoes, if you have kept it for so long, अभी मैं ले आया था 5 kg potato from Best Buy and all my potatoes started sprouting. यहाँ पे इसमें से कुछ नन्हे नन्हे बच्चे निकलने लगे। The place from where the small plantlets are coming out, emerging out, are known as eyes. Eye of the potato, from where the new plantlets will come. तो ये हो गया eye, और इसको हम bud भी कहते हैं। And from this bud the new plant will come out. So what a farmer does, पूरा potato नहीं काट लगा देगा। What he will do, he will cut the potato in these 4 pieces, and he will grow them in different places. अगर ऐसे ही रखना था तो नेचुरल तरीका होता है, and that will be crowded and then some would have survived and some would have died. But यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी डन बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स व्हिच आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो वेजिटेटिव और प्रोपेगेशन कौन कौन कर सकता है? Vegetative propagation is done by stems, by roots and by leaves. Stem से कैसे कैसे हो सकता है? By underground food storing, stem, by subaerial stems, by stem cutting, by layering, and by grafting.
5 different methods are there vegetative propagation by stem. 5 different ways. ठीक है. Roots and leaves we got one method, that's more than enough. तो अभी हम जो है vegetative propagation by underground food storing stems करते हैं. Underground food storing stems कौन कौन करेंगे? अनियन, पोटैटो, और जिंजर. कैसा दिखता है जिंजर? जिंजर एंड टर्मरिक. ये भी कुछ ऐसे दिखता है. एंड गार्लिक, एंड कैलोकेसिया. कैलोकेसिया जानते हैं? कैलोकेसिया कैसा होता है? जिसको हम अरबी कहते हैं. अरबी. तो अनियन, पोटैटोज, जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक, कैलोकेसिया, they all are underground food storing stems. Why should we call them a stem? Why not root? ये तो जमीन के नीचे मिलते हैं. If they are growing under soil, why should they call it stem? Because they have nodes and internodes. दूसरी बात, they are green when young. रूट्स को ग्रीन होके क्या करना है? रूट्स को ग्रीन होके क्या करना है? रूट्स आर नेवर ग्रीन. रूट्स आर नॉट मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ग्रीन आर दोज पार्ट्स व्हिच कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. स्प्रिंग अनियन आप में से सबने खाए होंगे. यू ऑल मस्ट हैव कंज्यूम्ड स्प्रिंग अनियन. ऑल चाइनीज फूड नेसेसरीली है स्प्रिंग अनियन. तो स्प्रिंग अनियन हम लाते हैं, वो थोड़ा सा ग्रीनिश, थोड़ा सा वाइटिश और थोड़ा सा येलोइश रहता है. तो वो किस लिए है? बिकॉज वो स्टेम था. वो स्टेम था तो इट विल बी ग्रीन. सो दीज 5 एग्जांपल्स यू रिमेंबर. 5 या 6 एग्जांपल्स हैं. अनियन, पोटैटोज, जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक एंड कैलोकेसिया. व्हेन दे आर इन द मॉइस्ट सॉइल, they give rise new plants from their nodes when the favorable conditions arises. एक ही लाइन लिखना है. Underground food storing stems give rise new plants when the favorable condition arises from their nodes. और जब पौधा है तो वो अपना फूड बना के रखेगा इसके अंदर. और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, द मेन प्लांट विल डाई, बट द स्टेम विच इज देयर, विच इज स्टोर्ड फूड, दैट विल बी कैरिंग आउट और प्रोपेगेटिंग टू न्यू जनरेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. टुमारोज क्लास विल स्टडी